This is Republic and you're watching This is Exclusive with me, Shavin Sen. Ladies and gentlemen, a 17-year-old drunk juvenile driving a Porsche, that too at 160 kilometers per hour, took away the lives of two bright individuals. And in return, a lenient system let that VVIP brat off by just writing an essay and spending 15 days with the traffic department. Under immense pressure, Pune police finally reacted. An FIR was registered. But ladies and gentlemen, there is also the other side of the story. An attempt that is once again being made as to who exactly killed Aditi, who exactly killed Ashwin. These are a few questions that are now being raised. Is there an attempt that is being made by a reality honcho to try and cover up this entire matter? Once again, bringing in narratives like there was a driver inside the car. Tonight on This is Exclusive, we get you full details of what really happened on Sunday morning. And not just that, this entire claim that whether at all there was a driver inside the car or not, that is going to be demolished tonight on This is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking at this hour. Pune horror, two club owners arrested by the Pune police this after national outrage. Crime branch has arrested father of the accused, happens to be an influential builder in Pune. Maharashtra Deputy CM steps in, says no leniency will be shown. Families shattered fighting for justice. Was there a cover-up? New charges added only after massive public outrage. Who was responsible for the death of two people? And the fact is, whether at all there has been a cover-up on the part of not just the police, but also you've had the father of the accused. What's important to point out here is that details that are basically emerging from the preliminary investigation that has been carried out is, number one, that not one person, more than one was inside the Porsche. And not just that, there is also an attempt that is now being made, a narrative that has been created, and that essentially being that the VVIP brat was not on the wheels. Is that the case? In a short while from now, on This is Exclusive, we will present before you, ladies and gentlemen, a star witness. A person who was present at the very spot, who also happens to be a police witness. His first statement was already recorded. The question is whether at all the Pune police has already recorded it before the magistrate, or things would once again change. Will it again turn out to be hostile? That's the reason why, ladies and gentlemen, tonight on This is Exclusive, we are getting you more details. But first, take a look at this detailed report, and then we bring you that big breaking news coming in.
One VVIP brat, one Porsche, and two innocent lives. Two victims, full of promise and dreams, are shattered in an instant. Watch how an entitled VVIP brat of rich builder father snuffs out the lives of two innocents. Anish Avadia and Ashwini. Their names are now etched in the annals of sorrow. Victims of a reckless act fueled by irresponsibility and arrogance. The pain is unbearable. The loss, unfathomable. Their smiles are now a memory. The family of the two victims are left with a void that can never be filled. The kin of Ashwini and Anish are inconsolable and they are demanding justice. मेरे को रिलेटिव द्वारा खबर लगी कि आशिक का एक्सीडेंट हो गया है पुणे में किसी कार से। तो मैंने जानकारी वहाँ से एकत्रित की, यहाँ फोन लगा के तो जानकारी लगी कि भैया लोग निकल चुके हैं। और आशिक के स्वभाव के बारे में तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इतने सरल स्वभाव की, इतने और सबके बीच में पली बढ़ी और इतने मृदु स्वभाव की बच्ची थी वो। परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा था ये खबर है? परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और भगवान क्या दे सकता है। बस हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी जिंदगी उसको लग जाती, हमारा जीवन नहीं जाता। संविधान के अनुसार ही किया गया है, इसमें कुछ अच्छा या कुछ खराब नहीं है। जो कार्रवाई हुई संविधान के अनुसार ही हुई। जिस प्रकार से 14 घंटे में ज़मानत दे दी थी, काफ़ी हैरानी हुई, दुख की भी बात थी। अब चूँकि जो कदम उठाए हैं उससे क्या लगता है कि और भी कोई स्टेप उठाने की आवश्यकता है आपको लगता है? भारतीय कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कुछ ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत। The VVIP brat of high-profile builder father would have escaped scot-free if not for national outrage. The minor, after killing two people, was let go within 15 hours. He was beaten by the public after the crash, but the justice system's order was the biggest brow raiser. Because the order of the Juvenile Justice Department did nothing but rub salt on the wounds of the victims. The order was a get-out-of-jail-free card. The minor was asked to write an essay, spend 15 days with the traffic cop, and get treatment to quit drinking. But a clincher has changed everything. The minor, who was licenseless, was seen guzzling alcohol and smoking with his friends before he mowed down two people in his luxury sports car. In the latest, the excise department has now shut down two pubs where the accused had a drink with his friends. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis chaired a meeting with the top cops in Pune to seek a complete report on the accident. But what's even more shocking is that the killer's father was also on the run, trying to evade arrest. Vishal Agarwal, the owner of Brahma Realty and Infrastructure, was arrested from Pune airport. Agarwal did everything in his capacity to possibly hoodwink the police, to an extent that he booked rooms in different hotels but checked into a lodge. However, the bigger shocker came when Pune police said they didn't receive the medical report of the accused. को बेल दिया, उसके बाद ये आउटरीच जो पब्लिक आउटक्राई हुआ वो बढ़ा है। और मैंने बताया कि जिस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट ने दिया था, वो जिसके वजह से पब्लिक आउटरीच बढ़ा, वो जिस प्रकार से पब्लिक उस पर नाराज़ थी, हमें भी वो ऑर्डर मान्य नहीं था और हम लीगल रेमेडीज़ जो भी है वो अप्लाई कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा जो कुछ भी इस केस में संभव था वो किया गया है, आगे भी जो कुछ भी संभव होगा वो किया जाएगा। And in the latest, it is being suspected that a political leader from Ajit Pawar's NCP allegedly intervened to help the killer minor out of the clutches of law. With multiple attempts being made to hush up the case,
The question is the Pune Porsche crash the biggest cover-up in India? Tonight on This Is Exclusive, we answer two important questions. The narrative that is being built, whether at all the VVIP brat was on the wheels or not. On This Is Exclusive, we get you the testimony of the star witness, the person who was present at the very spot when the accident took place. And this is what he had to say. One, the VVIP brat was not alone. It's now confirmed. In fact, top sources within Pune police also now confirming that the witness's statement has been taken into record, and the fact that the other two people who were present inside the Porsche have been already called for questioning. So the fact here is the VVIP brat was very much on the wheels. First, listen in to the star witness who was present at the spot when the accident took place. आम्ही नागपूरचे मी रिक्षा चालवतो. रिक्षा चालवत असताना आम्ही काय शनिवारी तिथं सगळे सॅटर्डे नाईट असल्यामुळे सगळं व्यवसाय म्हणजे रिक्षावाल्यांचा त्या साईडला असतो. बस सुटतात रात्री म्हणून आम्ही त्या साईडला होतो आणि बरोबर जस्ट एक्झॅक्ट समोर माझी रिक्षा पार्क करून थांबलो होतो. थांबल्यानंतर आहे ना तर तिथं समोरनं काहीतरी ट्रॅफिक वाढलं होतं. तर मी ट्रॅफिक सॉल्व करण्यासाठी समोर जसं रस्ता क्रॉस करत होतो तर गाडी मला एवढ्या जोरात क्रॉस करून गेली ना तर आम्हाला ती गाडी दिसली नाही. कोणती गाडी सरळ जाऊन त्यांनी ना गाडी उडवली. आम्ही जसं बघितलं की वरती वाऱ्यात मुलगी हवेत उडाल्यानंतर ती खाली कोसळली ना तर आम्ही तिथपर्यंत पोहोचलो मुलीचे आणि ते मुलाचे ऑलरेडी ते रक्त चाललं होतं. त्यानंतर पुढं ती गाडी जाऊन थांबली होती. एअरबॅग उघडल्यानंतर ती थांबली ना तर आम्ही तिथं पोहोचूच तोवर आहे ना तिथल्या मुलांनी जे जमलो होता त्यांनी त्या तिघांना बाहेर काढलं होतं. आम्ही तिथं पोहोचूच तोवर ते दोघांना खूप मारायचं चालू केलं होतं. मग आम्ही जाऊन तिथे गेलो ना मारण्याच्या जागेवर तर ते लोक म्हणत होते की आम्हाला मारू नका, तुम्हाला किती पैसा पाहिजे ना आम्ही द्यायला तयार आहे. किती वेळ होतात? पोलीस कधी आले? मी सुरुवातीपासून होतो कारण पब सुटल्यानंतर आम्हाला भाड्याची अपेक्षा होती की समोरनं भाडा येणार, एखादा भाडा मारून घरी जाणार म्हणून आम्ही समोरच बरोबर जस्ट तिथं क्रॉसिंग आहे ना क्रॉसिंगच्या समोरच माझी रिक्षा थांबलेली होती. मी जस्ट क्रॉस केल्यानंतर आहे ना जसं ते ऍक्सिडेंट झालं माझ्या मागनं ती गाडी गेल्यानंतर आहे ना मला त्या गाडीचा पूर्ण वारा लागला. मी स्वतः घाबरलो की एवढ्या स्पीड कोण गेले आणि जसं मी वळून बघतोय ना तर माझी मुलगी जर उडाली ते सगळं झालं. त्यानंतर आम्ही तिथं गेलो. तिथं गेल्यानंतर हे सगळं इन्सिडेंट बघून आहे ना पोलीस 10 ते 15 मिनिटात आले. त्या दोघांना जीपमध्ये टाकून घेऊन गेले आणि त्यानंतर दुसरी जी गाडी त्या दुसऱ्या मुलाला पण टाकून घेऊन गेले. Well, in fact, questions are also being raised about the immediate action that was taken by the Pune police. Joining me on this broadcast is Mr. Gyanendra Soni. He is the uncle of the victim who was present in Pune. In fact, he was asked this question by the Pune police. Let me bring in Gyanendra Soni. ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए. सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप पुणे पहुँचे थे, आपसे कुछ पूछताछ की गई थी पुणे पुलिस से? नहीं सर, पूछताछ तो नहीं कर पाया किसी ने मेरे से क्योंकि हम काफी लेट पहुंचे थे. और दूसरी बात ये है कि जब वहां पे मेरा भांजा है अनीस अवधिया और उसका जब 2 बजे के करीब जब एक्सीडेंट होता है तो वहां लोकल पब्लिक और जो कुछ फ्रेंड्स थे उनके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं. लेकिन वहां बहुत तरीके से बहुत अच्छे से उनका मतलब टेक केयर नहीं किया जाता. बाकी ये था कि 2 से 2:30 बजे के बीच में ये क्लियर हो गया था कि उनकी डेथ हो गई है. उसके बाद भी 4 बजे या 5 बजे दोपहर तक दूसरे दिन उनको ना तो फ्रीजर की व्यवस्था की जाती, जबकि चाहते वो तो फ्रीजर की व्यवस्था की जा सकती थी. जबकि जब जान रहे हैं आप कि बच्चा जो है वो बाहर का है, उनकी फैमिली को आने में कुछ टाइम लगेगा, तो उस बीच में कहीं ना कहीं उनको इतनी सुविधा तो दिलानी चाहिए. ज्ञानेंद्र जी, मैंने ये सवाल इसलिए की क्योंकि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जब परिवार वाले पुणे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या रिश्ते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछताछ की जा रही थी. क्या इस बात पर कोई सच्चाई है? सर एक्चुअली वो लोग फ्रेंड थे और किसी और फ्रेंड के बर्थडे के लिए वो लोग खाना खाने के लिए बाहर गए थे, डिनर करने के लिए, और काफी ग्रुप था उनका. जब वहां से वो लोग रिटर्न हो रहे थे तो उसके बीच पे ही मतलब उस कार ने ठोकर मारी और कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई वहां पे. पुणे पुलिस को जब आज ये पूछताछ की गई थी कि आखिरकार
क्या ज़रूरत थी ये पूछने के लिए कि रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में क्या है? पुणे पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि इंक्वायरी की जा रही थी। क्या एक तरह से कोई हरासमेंट किया जा रहा था, जिस तरह से सवाल किए जा रहे थे, और एक तरह से जो डीले देखने को आ रहा था? वो कहीं ना कहीं सर पुलिस केस को नया मोड़ देना चाह रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ काम करते थे ऑफिस में, और बर्थडे पार्टी के लिए ये लोग खाना खाने के लिए गए थे। रिटर्न होते समय मतलब हिट एंड रन केस में मतलब इनकी डेथ हो गई। जब आपको ये पता चला कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये बेल ऑर्डर उन्होंने दी कि 15 दिन में आपको आरटीओ के ऑफिस में जाना है, उसके बाद क्या आप लोगों ने पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि आज पुलिस तो ये कह रही कि हम उन्हें अडल्ट के तहत देखना चाह रहे हैं, अडल्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। क्या आपको ये पहले बताया गया था? सर एडल्ट की जैसे ट्राई करने उनकी हरकतें जो है ऑलमोस्ट एडल्ट जैसी ही हैं, और ये चीज़ उन्हें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हालांकि शुरुआत में तो केस को बड़े लचीले तरीके से ट्रीट किया गया है, और 15 दिन के लिए आप यातायात के उसमें काम करें और कुछ ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए उन्हें सजा दी गई, मतलब और उसकी उन्हें बेल दे दी गई ऐसा कह करके। और जबकि उसकी उम्र जो है अंडर 19 बताई जा रही है, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, उसके साथ साथ उसने ड्रिंक भी की थी, और 2 लोगों की हत्या हो जाती है, 2 लोगों की फैमिली से 2 लोग मतलब खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद इतने आसान तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है कि आप निबंध लेखन करें, तो ये तो कहीं किसी प्रकार से न्याय नहीं था। ज्ञानेंद्र जी, और एक चीज सवाल जो मैं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पहले दिन ये हादसा होने के बाद कुछ ऐसी चीजें की जा रही थी जिससे पूरे केस डिले हो चुकी थी, कुछ ये सवाल उठाया जा रहा था कि ब्लड रिपोर्ट के साथ टैंपरिंग की जाने की कोशिश की जा रही थी, एक दबाव बनाया जा रहा था पुलिस के ऊपर कि कार्रवाई को आगे ना लेके जाए। आप लोगों के पास क्या जानकारी थी इस पूरे मामले को लेकर? सर उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि कहीं ना कहीं हमें टाइम से वहां पहुंचना है और बॉडी को लेके आना है वापस। लेकिन इस बीच पे मेरा इतना और जरूर कहना है कि कहीं ना कहीं लोकल जो गवर्नमेंट है और पुलिस है उसका बहुत तरीके से सपोर्ट उस समय नहीं मिला है, जबकि फैमिली मेंबर्स वहाँ कोई थे नहीं, और एक छोटा भाई था जो कि पूरा रिस्पॉन्सिबल था वहाँ पे उसको टेक केयर के लिए, और जिस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया लोगों द्वारा, तो वहाँ पे भी बहुत तरीके से मतलब सुविधा नहीं दी गई। जब ये डिक्लेयर हो गया कि 2:30 बजे ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो गई है, तो उस समय ये उन्हें पता था कि कम से कम फैमिली को आने के लिए काफी समय लग जाएगा, कम से कम 20-22 घंटे लग रहे होंगे, तो उसके लिए उन्हें फ्रीजर तक की व्यवस्था नहीं कराई, और कहीं ना कहीं छोटा भाई जो कि 17, 18, 19 साल का है उसको उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि आप बॉडी ले जाएं, अदरवाइज वो डिकम्पोज होने लगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा ज्ञानेंद्र जी, ये पता है कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल का समय है, क्या आप लोग मानते हैं कि एक तरह से पुलिस से चूक हुई है? सर बिल्कुल चूक हुई है और हमें न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है। भले वो अंडर 19 अभी पता चल रहा है, लेकिन उसकी हरकतें अंडर 19 वाली नहीं है, और उसने ड्रिंक करके मतलब इतना ऐसी हरकत किया है, और इतनी आसानी से अगर उसको बेल दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो वीवीआईपीज़ के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं जितने आसानी से उससे बेल दी गई है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो आगे भी आने वाले समय पे किसी को भी एक्सीडेंट करके और ऐसे लिख के और बाहर आ सकता है, तो ये तो कोई न्यायिक प्रणाली समझ में नहीं आ रही है। बाकी मीडिया और बाकी लोगों से सपोर्ट की एक आशा करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं न्याय की आशा है आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं न्याय हमें मिलेगी। ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। Victims' family members have also spoken out. Questions are being raised in the manner the Pune police has essentially operated. And the very fact was the VVIP brat let off with a slap on the wrist. Today, the government has admitted that there has been leniency that has been shown by the Justice Juvenile Board. But the question also remains, why exactly did the Pune police not really press upon this immediately? The second question that also comes up is that why is there still no word about the medical report? Till about 3 o'clock this afternoon, Pune Police Commissioner confirmed to the media that they haven't received the medical report. Where is the medical report? These are some questions that the police perhaps will have to answer.